Which problem do you have doubt in? We can start with that problem first. Combination sum. Yeah, the combination sum 1 or combination sum 2? 2. Combination sum 2, right? So, can you tell how did you solve combination sum 1? Like, what was the approach to it? It was like just like the subset sum. Can you increase the volume? But I'm not able to hear. It was just like subset sum, similar to that. Okay, so let's first go through the explanation of first problem, so you will get the clear explanation of what you did, and then we can move to combination sums 2, which is basically an upgrade of this problem. There is just some modification in the code of first problem to get the answer for second problem. So here it shows that you have to return subset sum which with sums to k, and there is an array of integer of size n, where and you're given integer k which is a target sum, and you have to return all the subsets of this array with sum to k. Okay, so if you have done yesterday's problem, they were about generating subsets, right? So first of all, you would have an idea of how to generate subsets if you have done the last two problems, which is by the method of pick and not pick. Okay, so there are two ways: you will pick the item or you will not pick the item, and you will keep checking when the index reaches n. And if the index reaches n, then it means that we cannot take any more elements, and we will check the size of the subset, and we will just add that the subset which we got into the main answer. Okay, so here also we have a similar kind of approach. What we will do is, let's take it here. Let's take this problem and I will share my screen so that you are you able to see this one, the snipping tool window. Can anyone check? Yes. Okay. Yes. So what the problem says, you have an array, okay, उसमें कुछ elements हैं, and you have a target sum k. Okay, so maybe let's say target sum is 6, and you have elements here like 1, 2, 3, 4, 6, right? So there will be some subsets whose sum would be equal to 6. So what would those subsets be? So this one would be like 1, 2, 3. Okay, and the other subset would be 6, right? और कौन सा लगेगा? 2, 4 लगेगा, right? और कोई सबसेट बचा है इसमें? और कोई सबसेट बचा? 1, 2, 3 हो गया, 2, 4 हो गया, 2 के साथ 6 नहीं जाएगा, 6 का खुद का होगा, 4 के साथ 2 वाला कंसिडर कर लिया. सो वी हैव कंसिडर्ड ऑल द सबसेट्स. ओके, सो इधर हमारा स्ट्रैटेजी क्या है? whenever we get an element, suppose हमें 2 मिला. ओके, सो वी हैव टू चॉइसेस. या तो हम इसको हमारे सम में लेंगे, ओके, विच इज कॉल्ड पिकिंग, या तो हम उसको हमारे सम में नहीं लेंगे, विच इज कॉल्ड नॉट पिक. तो व्हेन वी आर जनरेटिंग सबसेट्स, वी नो कि हमें ये दोनों मेथड्स को कंसिडर करना रहता है, नॉट पिक और पिक. ओके, सो जब हमने पिक किया, तो हम उसको पिक तभी कर पाएंगे ना जब हमारा जो टारगेट सम है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा. लेट्स से द टारगेट सम इज k इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 2. तो हम अगर 2 ऐड करते भी सम में, सो इट वुड एक्सीड k, so we won't be needing 2 then. Okay, so we just need to check, give an if condition here. कि suppose if जो हमारा अभी रिमेनिंग टारगेट सम है, if remaining target sum, let's say it is star, is greater than or equals to
वी ऑफ आई। वी ऑफ आई क्या हो जाएगा, जो करंट एलिमेंट जिसको हम अभी चेक कर रहे हैं, करंट एलिमेंट जिसको पिक नॉट पिक चेक कर रहे हैं, अगर वो उसके बराबर या ज्यादा हुआ तभी हम उसको पिक करेंगे, अदरवाइज हम पिक नहीं करेंगे। ये बात समझी? पिक नॉट पिक वाला समझा? एनी डाउट इन दैट? Yes. ओके, No. या अच्छा समझ गया ना? तो बस कोड देख लेते फटाफट। जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, जनरेटिंग सबसेट्स, तो वैसे ही यहाँ पे हमने एक सबसेट ले लिया एंड हमने फिर एक फंक्शन कॉल कर दिया, वॉइड फंक्शन कॉल कर दिया। और हमने यहाँ पे क्या बोला कि पहला तो ये वाला हो गया नॉट पिक स्टेप। ओके, नॉट पिक, इसमें हमने क्या बोला, हमने सम को कुछ नहीं किया और हमने ऐसे ही उसको आगे भेज दिया। एंड सेकेंड है हमारा पिक स्टेप। ओके, सो हमने क्या बोला कि सबसेट में हम पुशबैक करेंगे, उसके बाद हम कॉल करेंगे एंड सब ये वाला बैक ट्रैक स्टेप हो जाएगा। ठीक है, बैक ट्रैक स्टेप हो गया। एंड उसके बाद हमने बोला अगर इंडेक्स इफ रीचेस array size then we will just check if sum is equals to target and array dot answer dot pushback सबसेट कर देंगे जो हमारा आंसर होगा एंड उसके बाद रिटर्न कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी नहीं है, कैन एनीवन टेल दिस थिंग व्हिच आई मेंशनड इन दिस कोड एंड आई डिडंट applied in this code, can anyone tell? What? Can you repeat? मैंने पिक कर दिया, मैंने पिक कर दिया और नॉट पिक कर दिया, बट मैंने यहाँ पे उससे ज्यादा समझाया था। मैंने बहुत नॉट पिक भी होगा, पिक भी होगा, बट ये भी कुछ है। बट मैंने इधर समझा तो दिया, बट हियर आई हैव नॉट implemented one condition. So can you tell what condition that is? Otherwise I can always tell, but I just want to know if you know इसमें। हाँ हाँ, वो टारगेट से अगर ज्यादा रहेगा तो ब्रेक कर, मतलब रिटर्न हो Right. जाएगा। Yeah, so we are not checking if if we if we have the ability to add this in sum, right? We are just directly adding the index वाला जो भी ये वाला वैल्यू वो सम में ऐड कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट चेकिंग एट द एंड। उसमें क्या होगा, वी आर यूजिंग मोर रिकर्सिव कॉल्स देन वी नीड, राइट? सो हम यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं कि हम ये वाला स्टेप तभी करेंगे जब हमारा जो सम है, ठीक है, सम प्लस array index, वन सेकेंड, सम प्लस array index की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल्स टू टारगेट जाएगा, राइट? तभी हम करेंगे। अगर सम प्लस array index की वैल्यू टारगेट को एक्सीड करे देन देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरिंग दैट वैल्यू इन आवर सम, राइट? नहीं तो उसके आगे के जितने भी रिकर्सिव कॉल्स होंगे वो उसका मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर ऑलरेडी उससे रीच नहीं होने वाला। सो हमने सिंपली यहाँ पे बोल दिया सम प्लस array index इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, देन फाइंड देम वाला रिकर्सिव कॉल कर दिया पिक करने के लिए एंड उसके बाद बैक ट्रैकिंग स्टेप कर दिया एंड यहाँ पे नॉट पिक का कर दिया। सो दैट इज द बेसिक solution for combination sums 1. Can you talk about time complexity and space complexity? So इसका क्या है constraints? एक सेकेंड, इसका constraints काफी कम है, but since you 2 have raised to power n. yeah 2 raised to power n होगा। कैसे होगा? Cause for every element you have two possibilities, या तो तुम इसको पिक कर रहे हो, या तो तुम उसको पिक कर रहे हो, या तो नॉट पिक कर रहे हो। इसको पिक कर रहे हो या तो नॉट पिक कर रहे हो। ओके, so that's why you have two possibilities for every number, so 2 into 2 into 2 equals to 2 raised to n. Okay, but Can you explain the backtracking part? okay, so backtracking part क्यों है? Because हमने जब इस वाले में ये वाला स्टेप इम्प्लीमेंट किया पिक वाले के लिए, then we want to find other combinations also for the same value. That's why we do the backtracking step. Okay. So that is the basic solution of combination sums 1. अगर ये समझ आए तो सम ये वाला करते हैं combination sums 2.
चले आगे। चलो। ओके, सो ये वाला एरे, इधर भी एक एरे दिया है एन पॉजिटिव इंटीजर्स का, हमें एक टारगेट दिया है, बट व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम? लेट्स टेक जैम्बो, बेटर है। What is different this time? Here it is given, your task is to find all unique combinations of the elements of array ARR whose sum is equal to target. Okay, but इस बार हमें क्या बोला है कि जो combination है, it should be in an increasing order and you need to print all unique combinations in lexicographical order. Unique combinations का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमने अगर एक कॉम्बिनेशन ले लिया 1,2, तो वो जो 1 है उसको वापस रिपीट नहीं करना है। ओके, that means like the unique, हमें सारे unique combinations लेने हैं। ओके, सो 1 सेकंड, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इस ये वाला लेते हैं, 7,8 है, 7,8 एंड इसमें क्या बोला है कि इसका साइज ऑफ एरे 7 एंड हमारा टारगेट सम इज 8। नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम दिस, जिसका टारगेट वैल्यू सबसेट, ऑल दी सबसेट जिनका टारगेट वैल्यू 8 होना चाहिए, उनका सम 8 होना चाहिए एंड वो सारे कॉम्बिनेशंस यूनिक होने चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, एक सेकंड, पहले अगर हमें इफ वी नीड all the combinations in non-decreasing order, increasing order. So let's first sort all these numbers. Okay. So उससे क्या होगा कि जब भी हम पिक नॉट पिक करेंगे, तो सपोज हमने अगर ये सॉर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 1 2 6 1 1 2 5 6 7 10। ओके, सो जब हम पिक नॉट पिक करेंगे इधर, तो सपोज हमने 1 का पिक नॉट पिक करा और वो सबसेट में आया या फिर नहीं आया, लेट से आया, तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स होंगे वो उससे हमेशा इंक्रीजिंग होंगे, इसलिए हमने पहले ही सॉर्ट करके रख दिया, सो दैट ये वाला जो कंडीशन है कि द ईच कॉम्बिनेशन मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। नाउ वी आर सेइंग कि वी नीड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस। ओके, अगर सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए, तो लेट्स से हमने 1 इधर एक बार यूज कर दिया। ओके, अगर इफ वी हैव अ सबसेट, लेट्स से ये वाला 1,7, ओके 1,7, 1,7 का जो सबसेट होगा दैट वुड आल्सो लीड टू दिस 8। ओके, इस वाले 1 के लिए, ओके, एंड इस वाले 1 के लिए भी हमें एक बार मिलेगा 1,7, बट उसने क्या बोला है कि हमें सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए। ठीक है, बट यूनिक कॉम्बिनेशंस करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम एक हैवी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, सेट यूज कर लो, एंड देन जो भी तुम पिक नॉट पिक वाला पहले कर रहे थे कि एलिमेंट्स ले लो और उसके बाद सेट में डाल दो, सेट के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वाले सबसेट्स होंगे उनको एलिमिनेट कर देगा। बट वी कैन, लेट्स नॉट डू दैट वे, लाइक वो फर्स्ट अप्रोच वही होगा कि लाइक ऐसे लेके उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगा एंड तुम्हारा मेमोरी भी ज्यादा लगेगा। बट व्हाट इफ रिटर्न तो हमको लिस्ट करना है। या रिटर्न तो हमें सबसेट्स का लिस्ट करना है, राइट? ये वाला जो कि हमें वो सम दे रहा है, वो सबसेट्स का एरे रिटर्न करना है, राइट? कोई डाउट है उसमें? ये शुभम, सबसेट सम 2 वाले की तरह ही है ना, बस इसमें रिटर्न करना है वेक्टर, आई एम नॉट एबल इसमें टू सम रिटर्न करना है। थोड़ा जोर से बोलो ना ध्रुव। Is it just like the subset sum 2 problem? In this we have to return the vectors, and in that we have to return the sum. या मतलब 1 जैसा ही है, 1 में तुम्हें कुछ कंडीशन नहीं था कि तुम्हारे जो कॉम्बिनेशंस आए हैं वो यूनिक होने चाहिए, या फिर जो तुम्हारे कॉम्बिनेशंस आए उसमें जो
ऑर्डर ऑफ नंबर्स है वो असेंडिंग डिसेंडिंग कोई ऑर्डर होना चाहिए. अगर मैं वहां पे भी सॉर्ट करके आंसर देता तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता. बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बोला है कि हमें नॉन डिक्रीजिंग चाहिए एंड सारे यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को पता है कि ये वाला 1 इसके साथ आंसर देने वाला है 7, तो मैं इस 1 को कभी कंसिडर ही नहीं करूंगा वापस. ओके, बेसिकली क्या है कि अगर एक बार मैंने 1 कंसिडर कर लिया, ओके, अगर मैंने मेरे पिक स्टेटमेंट में 1 को एक बार कंसिडर कर लिया एंड आई नो दैट फॉर दैट 1 आई एम गेटिंग दिस 1,7 एज अ रिक्वायर्ड आंसर, तो मैं इस 1 को वापस नहीं लूंगा. ये चीज समझा? हाँ. सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 3 4 5, ओके, एंड लेट्स से हमें बनाना होता 7, तो मैं क्या बोलता, मैंने 2 लिया. ठीक है, सबसे पहले 2 लिया, मतलब मेरा रिकर्जन चल रहा है उसके अंदर. लेट्स से 1 के लिए नॉट पिक हो गया एंड 2 2 वाला ले लिया एंड देन उसके बाद ये 5 आ गया. मतलब हमें पता है कि आगे जाके 2,5 एक आंसर मिलेगा हमें, राइट? देन वी डोंट नीड टू कंसिडर दिस 2 अगेन. ओके, समझिए बात? हाँ, अभी मतलब वापस से 2,5 बना. हाँ, 2,5 2 बार बनेगा एंड हमें वो चाहिए नहीं. सो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि हम ये वाला 2 इग्नोर ही कर देंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट इन अ सबसेट, राइट? ओके, सो ये हो गया. तो बेसिकली इसमें सोल्यूशन कैसे बनेगा, हमने शुरुआत में तो क्या बोल दिया, सॉर्ट कर देंगे. सॉर्ट वाली चीज समझ आई ना, क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए सारे नंबर्स. ठीक है, एलिमेंट्स में हाँ. नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमने सॉर्ट कर दिया. एंड देन हमने जो फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही एक सबसेट लिया एंड यहाँ पे ये वाला टारगेट वाला सबसेट लिया. एंड और क्या करेंगे, उसके बाद इधर आए, सॉल्व वाले वॉइड वाले फंक्शन में आए. एंड देन हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एवरी इंडेक्स, जो हमारा जो भी इंडेक्स होगा ना इधर, सपोज ये शुरुआत में आईडीएक्स ये है, लेट्स से आईडीएक्स फर्स्ट वाले के तो हो जाएगा, सेकंड वाला लेते हैं आईडीएक्स. ठीक है, आईडीएक्स अभी इधर है. ठीक है, नाउ वी आर सेइंग कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आईडीएक्स, मतलब इसके आगे वाले जो इंडेक्सेस होंगे, इफ इट इज इक्वल्स टू उसका प्रीवियस मेंबर, इफ दिस इज इक्वल्स टू उसका प्रीवियस मेंबर, तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट नीड द सेम कॉम्बिनेशन राइट अगेन. तो इसलिए मैंने बोल दिया कि कंटिन्यू. और अगर मेरा जो एरे आई है वो टारगेट से ही बड़ा है, तो फिर तो मैं लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट लाइक वी डिड हियर, कि अब सम प्लस एरे इंडेक्स इज लेस देन टारगेट तो ही हम ले रहे हैं. अगर सम प्लस एरे इंडेक्स अगर टारगेट से ज्यादा हो रहा है तो हमें वो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने वहीं पे ब्रेक कर दिया. अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, देन वी विल ऐड दैट एलिमेंट इनटू अ सबसेट. वो सबसेट को हमने इसमें ऐड कर लिया एंड हमने टारगेट की वैल्यू अपडेट कर दी कि हमने वो सम के अंदर वो वाला एरे वो वाला एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो हमारा टारगेट की वैल्यू कम हो गई. एंड एज सून एज अ टारगेट रीचेस 0, वी विल ऐड दैट आंसर टू आवर मेन आंसर एंड उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे. And this is the backtracking step to check the same number for other combinations. समझा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो क्या नहीं समझा वो बताओ. एक बार डायग्राम दिखाना. या श्योर. सो अच्छे से बनाते एक बार. 1 2 2 3 5 था लेट्स से. सो सम लेट्स से सम जो बनाना है
वो हमें बनाना है 7। ओके, सो 2,5 से बनने वाला है, तो फिर ये वाला हमें इग्नोर करना है, बिकॉज इंडेक्स इंडेक्स अभी 2 पे, क्या, इंडेक्स अभी 2 पे IDX। हाँ, ठीक है, तो 2,5 तो बन जाएगा। एंड इसके बाद ये जो आगे वाला है, इट इज इक्वल्स टू दिस, राइट, वो ये दोनों यस, बराबर है, तो हमने कंटिन्यू कर दिया IDX -1, ओ I-1। I-1, बिकॉज वी आर चेकिंग, ये सॉर्टेड है ना, तो अगर जितने एलिमेंट्स बराबर होंगे वो साथ में रहेंगे, बिकॉज हम अब जब इधर कंटिन्यू हुआ तो हम इधर आएंगे, राइट, 3 पे आएंगे, नाउ 3 इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब कंटिन्यू तो नहीं होगा, तो हम आगे चेक करेंगे, अगर 3, फिर इधर क्या होगा चेक, अगर 3 इज ग्रेटर देन टारगेट तो हम ब्रेक कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, वो एलिमेंट को हमारे सबसेट में पुश कर देंगे, उसके बाद एक एक उसका रिकर्जन चलेगा एंड देन वापस पॉप कर देंगे। इसमें टारगेट क्या है? इसमें टारगेट टारगेट इज द टारगेट सम, राइट, जो हमें टारगेट सम बनाना है, अच्छा, एंड वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ टारगेट, लाइक हमारा लेट्स से पहले था टारगेट 7 था, ठीक है, एंड हमने बोला हमने 2 कंसिडर कर लिया, तो हमने क्या बोला कि अभी टारगेट की नई वैल्यू क्या हो गई, 7 - 2 इक्वल्स टू 5, जो कि हमने हमारे रिकर्जन कॉल में स्पेसिफाई किया, राइट, इधर देखो टारगेट माइनस आर आई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने 7 - 2 इस टारगेट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब कोई भी वैल्यू जो 5 से बड़ी होगी, ओके, अगर कोई वैल्यू 5 से बड़ी है, लेट से हमें सबसेट में यहाँ पे 8 मिल गया, ठीक है, नाउ 8 इज ग्रेटर देन 5, एंड 8 को कोई भी नंबर में ऐड करके हम 5 तो बना नहीं सकते, तो टारगेट पॉसिबल ही नहीं है रीच करना उससे, सो वो दैट्स तो व्हाई वी फिर वांट, छोटा हो गया तो। छोटा हुआ तो हम कंसिडर करेंगे ना, सपोज यहाँ पे 1 होता, ओके, नहीं, 5 की जगह अगर 4 होता वहाँ पे तो मिलता ही नहीं 2 का के साथ कॉम्बिनेशन किसकी में। जगह पे, जैसे 2 कंसिडर किया पहले, फिर टारगेट -2 करा, तो वो हाँ 5 टारगेट आया। -2 करा फिर 4 आया, राइट, 5 आया ना। टारगेट सॉरी टारगेट -2 करा तो 5 आया, एंड नाउ यू आर लेकिन सेइंग 5 कि होता ही नहीं उसमें, तो 4 या, होता उसकी जगह। हाँ यू आर सेइंग कि दिस विल नेवर रीच द टारगेट सम, राइट, यस। हाँ, तो फिर वो कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी ये कंडीशन रीच नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा, ओके, एंड अदरवाइज वो फिर यहाँ पे मतलब रिटर्न वॉइड फंक्शन है तो वो बंद हो ही जाएगा आफ्टर ऑल, एट द एंड, इफ यू डोंट रीच द टारगेट, अगर हमारा टारगेट 0 होता है देन वी विल कैच द आंसर, अदरवाइज इट वोंट बी एडेड टू द आंसर, ओके। या मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है, ओके, सो मतलब उसको दैट, पुश तो नहीं करेंगे ना फिर? या वी वोंट पुश इट, अदर मतलब जैसे ही टारगेट 0 हो गया इसका मतलब जो वो सबसेट है उसका सम इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, राइट, तो हमने उसको ले लिया, अदरवाइज नहीं लिया, ठीक। या, सो दैट वर द 2 प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, कुछ और डाउट हो तो बताओ, इसके अलावा डाइवर्स, हर्षवर्धन is saying something in the chat. हाँ, कैन यू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द वेक्टर एंड इनिशियली, ये गलत है, वी कैन नॉट रिमूव ऑल द because we won't be able to get these answers, right, 1,1,6 वाले, ये वाले आंसर्स हमारे छूट जाएंगे, which would be included in the backtracking step, so हम सारे डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो डुप्लीकेट आ रखे हैं ना आंसर में। हाँ
ये दैट इज ड्यू टू द बैक ट्रैकिंग स्टेप. मैं क्या कह रहा हूँ, 113, लेट्स से 113 हमें एक आंसर मिला इधर जैसे दिया है. आई एम कंसीडरिंग जस्ट दिस वन. आई थिंक आई एम राइट. ओके, जस्ट 1 सेकेंड, हो सकता है मैं गलत हूँ इधर. ओके नहीं. सो वन जैसे 116 आया, यहाँ पे 1 1 और 6 था, बट लेट्स से यहाँ पे वो था 2 6 और 4 1s, तो 116 दो बार बन जाता. और दो बार नहीं, वो तो मतलब सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते, कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम एज कंसिडरिंग ऑल दी वंस एंड ऑल दी सिक्स एज यूनिक. तो हमारे 4 into 2 8 केसेस बन जाते हैं उसके. तो टू 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 प्रिवेंट दैट, वी आर जस्ट डूइंग दैट फॉर लूप वाला चीज जिसमें हम बराबर वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर हमने सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए, then we won't be getting the 116 wala subset, which is not right. Okay, that's the reason. हर ओके, तो मतलब नंबर 116 वाला दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. हाँ, अच्छा, ठीक है. लेकिन that's एक why. और बात समझ नहीं आई इसमें कि जैसे कि आपने पहले तो उसको लिया, एक एरे ऑफ आई को लिया, फिर टारगेट माइनस एरे ऑफ आई सर्च कर रहे हैं ना उसमें. हाँ, तो ये तो दो ही मतलब एलिमेंट हुए ना, फिर ये इसमें 3 एलिमेंट कैसे आउटपुट में आ रहे हैं फिर? 3 एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज द सबसेट, राइट. ये वाले, बट हम ये लाइक, हाँ, ये 116 सबसेट्स वाला. सबसेट्स कैन बी एनी केस, राइट. मतलब कोई भी array में, if I take x elements from an array of size n, then that small array is the subset of the larger array. तो यहाँ पे बेसिकली वही है ना कि 116 इज द सबसेट ऑफ दिस लार्ज array. तो हमने इधर क्या किया, हमारा जो ds था वो भी एक वेक्टर इंट था, वेक्टर ऑफ इंट था. एंड हमने वो वेक्टर ऑफ ये वाला जो है वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर में पुश बैक कर दिया, राइट. समझाओ. यस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा था कि अभी जैसे 7 है सम टारगेट का, हाँ, तो पहला एलिमेंट 2 मिला और उसके बाद आपने 5 सर्च किया ना कि 5 है कि नहीं रेस्ट ऑफ 5 द. सर्च नहीं किया. we are just अभी देखो हम मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि सपोज अभी तुम्हारे पास है, तुम्हें तुम्हें सिर्फ 5 एप्पल्स चाहिए, ठीक है. बट कोई तुमने वैसा बोले कि अगर मेरे को 5 से कम मिलेगा, लेट्स से अभी मैंने तुम्हें 3 और दिए एप्पल्स, तो अभी तुम्हें 2 और चाहिए, राइट. तो तुम क्या बोलोगे, मैंने जब तुम्हें 3 एप्पल्स और दिए तो तब तुम तुम्हारा वैल्यू अपडेट करोगे ना. अगले आदमी को अगर तुम पूछोगे कि तुम्हें कितने एप्पल्स चाहिए, तुम 2 बोलोगे या 5 बोलोगे. अगर तुम्हें 3 मिल चुके हैं मुझसे, दो. तुम दो बोलोगे ना. तो वैसे ही हमने टारगेट को हर बार अपडेट किया है कि ओके, टारगेट, ओके, अगर समझ गया, अगर समझ गया. अगर तुम्हारे पास 5 एप्पल्स है, मैं तुम्हें 8 एप्पल्स दूंगा तो तुम थोड़ी ना लोगे, तुम्हें तो 5 चाहिए ना. वैसे यस, वही है. आई अंडरस्टूड. सो हाँ, एक बार खुद से ट्राई करना, कोड तो मैं भेज यस. दूंगा ग्रुप चैट पे. एंड दी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, आई थिंक combination sum 1 to palindrome or kth permutation sequence, right. These are one level up from these 4 problems. तो अगर पहले के 2 नहीं किए तो वो भी करो, एंड ये 2 भी करो, देन ट्राई द अदर 2 प्रॉब्लम्स. कल उस पर डिस्कशन हो ही जाएगा. ओके. इसमें बैक ट्रैकिंग अलग से सीखनी पड़ती है या फिर क्या, बैक ट्रैकिंग अलग से सीखनी पड़ती है या रिकर्जन के साथ ही? लाइक बैक ट्रैकिंग इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप. जब तुम्हें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई करने, राइट, एक नंबर के साथ, तब यस. तुम बैक ट्रैक स्टेप यूज करते हो. और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बैक ट्रैकिंग में. आगे आएगा ना, इसमें ही दिया है ना आगे, रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग का भी है. हम्म. ठीक. ओके, यस, थैंक्स. नो प्रॉब्लम. चलो बाय.